Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. 205 lectures which I have delivered, centralizing the new syllabus of BA English Honors. Today, I shall discuss widely the second chapter from Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay. First, you listen attentively to the lecture on second chapter's summary, when I shall explain all the difficult words which have been used by the author in this chapter. Now, the second chapter shifted to the evening as the sun sets and Kanakmai and Rajmohan's wife returned from the river. They passed a rare sight in East Bengal, a beautifully maintained garden with flowering bushes and manicured paths surrounded by an iron fence. A tank lies at the center, flanked by brick steps, and facing it is a reception room with two men conversing on the veranda. The elder man, above 30, is described as stout, dark complexioned, and generally unattractive. His appearance, though ordinary, carries an indefinable peculiarity. He is richly dressed in Deccan fabric and heavily adorned with gold ring on all fingers, gold chain and amulet. Despite this material wealth and display of power, his physical appearance is unremarkable and even slightly unpleasant, suggesting a contrast between outer richness and inner character. Although their conversation is on not detailed in this chapter, the descriptive focus remains on the older man's persona, hitting at arrogance and ostentations. The presence of these two men juxtaposed the early portrayals of the women, reinforcing the contrast between male privilege and female oppression. This chapter serves to introduce a new setting and key male characters who are likely to play pivotal roles in the story's unfolding conflict. The richness of the garden and the display of wealth and standings stand in shape contrast to the humble domestic world of the woman. Symbolically, this division highlights social and gender disparities, class tensions, and the formative masculinity tied to wealth and appearance. The chapter also deepens the novel's explorations of setting, both physical and social, and builds anticipation for the interaction between the characters. The garden becomes a space of contrast, beauty, and control, foreshadowing the looming influence of the men over the women's life and hitting at the future power struggles. Now, आप लोगों ने इसको सुना, ये क्या था? पहला मैंने सेकेंड चैप्टर का एक आपके सामने में छोटा से शॉर्ट करके उसको पेश किया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया। अब हम इसमें जो वर्ड्स आए हैं, अगर आप अभी कॉपी खोलिएगा और बुक खोलिएगा तो बुक में देखिएगा सेकेंड चैप्टर में क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। पहला बात है कि हम देख रहे हैं कि एक लड़की जो कनकमई है वो पानी लाने जा रही है, उसका उम्र 30 साल है। वो 30 साल वो अकेली नहीं जा रही, किसके साथ में जा रही? मतांगिनी के साथ में जा रही। मतांगिनी का उम्र सिर्फ 18 साल है। जब वो दोनों पानी लेके लौट रहे थे, पहले पानी लाने वक्त में वहां मैं बताया हूं कैसे घर से निकल के जा रही है। और मतांगिनी जो है वो कभी बाहर जाती नहीं है, अभी वो गई है। कौन बुलाने से? कनकमय बुलाने से। हम अक्सर कनकमय का जो वर्ड है उसको कनक करके हम पुकारेंगे। याद रखो, जब वो पानी लेके आ रही है उसी वक्त
में शाम हो गया है। शाम हो गया तो वो क्या क्या वर्ड सब इस्तेमाल किया गया वहां पर दो आदमी जो है माधव और माथुर बैठे हुए हैं। ये जो लड़की है मतंगिनी, वो जो है माधव की साली है, और मतंगिनी जो है वो कौन है, यानी कि राजमोहन की वाइफ है। राजमोहन जो इसमें मेन कैरेक्टर जिसके नाम में एक नावल लिखा गया है वो उसकी बीबी है। अब हम यहाँ देखें कि वर्ड, आप वर्ड जब पढ़ते जाइएगा देखिएगा आपके सामने में ये सब वर्ड्स आ जाएंगे और आप आसानी से समझ जाइएगा। मैं इसको पूरा अभी नहीं बता रहा हूं कि मामला क्या है, इसमें बहुत बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसके अंदर में छुपा हुआ है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहला देखिए वर्ड कैसा है। द रेज ऑफ द सन had vanished from the top of the coconut palm। यहां पर रेज ऑफ द सन देखिए, वैनिस्ड का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो गया। अच्छा, वैनिस्ड गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाएगा। अगर हम बैनिस्ड कर देंगे, बैनिस्ड का मतलब होता है जिलावतन कर रहा है, यानी कि किसी को जैसा राम को कौन दशरथ ने बैनिश किए थे, निकाल दिए थे, उसको वनवास कर दिए थे, फिर यहां पर वैनिस्ड हुआ, डिसअपियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, न्यूमरस रोजेस एंड मल्लिका बर्ड्स वेयर कैरसिंग। यहां पर ये जो वर्ड है देखिए, न्यूमरस बहुत मुख्तलिफ, रोजेस एंड मल्लिका, मल्लिका का मतलब है एक फूल है जो बंगाली में वो फूल होता है मल्लिका। बर्ड्स का मतलब होता है पेटल। वेयर कैरसिंग, यहां पर बहुत अच्छा वर्ड है कैरसिंग, सॉफ्टेनिंग, सॉफ्टेनिंग, नरम हो रहे थे। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये वर्ड बहुत बेहतरीन वर्ड है। हिज डार्क एंड कॉर्पुलेंट बॉडी कुड बी फुल्ली सीन थ्रू द शर्ट ऑफ डक्कन मसलिन। बहुत अच्छा वर्ड, देखिए आप उसमें पाइएगा। यहां पर बोला कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बिग शेप, अ बिग फ्रेम, यानी कि अच्छा बॉडी, कॉर्पोरेंट बॉडी, उसका बॉडी बहुत कॉर्पुलेंट बॉडी है, यानी कि बिग फ्रेम वाला है। कुड बी फुल्ली सीन, उसका बॉडी दिखाई दे रहा था, किससे? शर्ट ऑफ ए डक्कन, और जो ढाका में बना हुआ मसलिन होता है, एक कपड़ा जो नरम, बहुत ही जिसको कहते हैं थीन होता है, उससे दिखाई दे रहा था। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहां पर दो तीन वर्ड आप देखें फिर। द शर्ट हैज गोल्ड स्टडेड स्टड्स। यहां पर शर्ट जो उसका था हैड गोल्ड स्टड्स था। स्टड्स का मतलब था डेकोरेटेड विद गोल्ड। देखिए डेकोरेटेड विद गोल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, देयर वाज ए ह्यूज बल्जियन, बल्जियन। अच्छा, यहां पर ब्लजियन भी कहते हैं इसको, ब्लजियन। ब्लजियन का मतलब होता है ए थिक स्टिक विथ ए हेवी एंड। अच्छा, उसका स्टिक है, उसका एंड जो है बहुत थिक होता है, आदमी उसको पकड़े रहते हैं, इसको कहते हैं बल्जियन। Why this infatuation? अब देखिए इनफैचुएशन, ये वर्ड वहीं पर आया क्वेश्चन मार्क के साथ में। Why this infatuation? बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हम सिर्फ ये कह दें, उसका कहानी बता दें तो आप कहानी पढ़ लीजिएगा और उसको मजा नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ड नहीं जानेगा तो वर्ड को इस्तेमाल कैसे करिएगा। मैं चाहता हूं कि आप वर्ड का इस्तेमाल करिए। इनफैचुएशन, एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन। बहुत ही चाहत है, लेकिन ये चाहत बहुत कम लम्हों के लिए है। फिर एक जगह माथुर किस तरह, ये माथुर को माधव कहता है, माथो स्ट्रेंज ओनली, स्ट्रेंज ओनली। हम स्ट्रेंज का मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रेंज ओनली, ओके, उफ, स्ट्रेंज ओनली। स्ट्रेंज मीन इल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग। देखो स्ट्रेंज ओनली हो गया। माधव फ्लॉस्ड विथ इमीडिएटली चेंज द सब्जेक्ट। अच्छा, माधव फ्लॉस्ड, यहां पर वर्ड देखो फ्लॉस्ड। फ्लॉस्ड का मतलब होता है, हम उच्चारण में कभी कभी उसको टी का उच्चारण करते हैं, फ्लॉस्ड। फ्लॉस्ड हुआ एक्साइटेड और इलिटेड बाय समथिंग, बहुत ज्यादा उतावला हो जाना और बहुत ज्यादा खुश हो जाना। फ्लॉस्ड, देखिए खुशी से फ्लॉस्ड हो गए, फ्लॉस्ड, एक्साइटेड और इलिटेड बाय समथिंग। अभी आपको आ जाएगा। फिर देखिए वर्ड का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, रिसाइटेड द जैगोन। जैगोन का इस्तेमाल बहुत जगह आप वो जार्गन बोलते हैं, हम लोग को जैरगोन कह देते हैं उसको, जैगोन। और जैगोन का मतलब होता है वर्ड्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते, अरे व्हाई यू आर स्पीकिंग जैगन, आप जैगन क्यों बोल रहे हो। यानी कि वो वर्ड जार्गन, वो वर्ड है हम लोग जैगन कहते हैं ज्यादातर, जैगन वो वर्ड है जिस वर्ड को समझ नहीं पाते हैं कोई, वर्ड्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट का इस्तेमाल देखिए किस तरह करते हैं, यू हैव नो बिजनेस टू प्रैटल अबाउट अ रेस्पेक्टेबल वुमन। तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम सिर्फ प्रैटल कर रहे हो। प्रैटल का मतलब क्या है देखियो, प्रैटल का मतलब होता है मीनिंगलेस कंटिन्यूअस टॉक, कोई माने नहीं है, आप कंटिन्यूअस टॉक करके चले जा रहे हैं, कह रहे वहां जाएंगे उसका खाएंगे पीएंगे, उसका माने नहीं क्या कर रहे चाहते हो, अब कंटिन्यूअस टॉकिंग मीनिंगलेस। इसलिए यहां ए वर्ड को फिर अच्छे से देखिए, मैं सेंटेंस किस तरह लिखा हूं, यू हैव नो बिजनेस टू प्रैटल अबाउट रेस्पेक्टेबल वुमन पासिंग अलोंग द रोड। जो औरतें रास्ते में जा रहे हैं उसके बारे में तुम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, एकदम यूजलेस बात कर रहे हैं। फिर एक वर्ड इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया चैप्टर 2 में से, आप खोलिएगा चैप्टर 2 को देख लीजिए, योर स्काउलिंग फेस, योर स्काउलिंग फेस, तुम्हारा एंग्री फेस, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं स्काउलिंग फेस। योर स्काउलिंग फेस is depicted something which hiding behind it। तुम्हारा जो गुस्सा है वो मालूम कराता है कि कुछ चीज अंदर है। लिहाजा if you will go through the chapter, आप अगर चैप्टर में जाइएगा, सेकेंड चैप्टर में, you will find all these words and you can easily understand the chapter। My dear, if you would like to learn English, you should have to go through the lesson। If you aren't, then you can't understand it। You will be a reciter, you only go and write down। आप एक रट्टे तोता हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप रट्टे तोता की तरह लिखिए, but I want that you should go through your lesson perfectly। Thanks a lot। Subscribe this channel।